इस एक्सपो का एक बेसिक पर्पस यही है कि हम जो चीज़ स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ा रहे हैं उनको उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो आज के एक्सपो में हमारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक 3rd ईयर से है, उन्होंने ये कोशिश की है कि जो ट्रेडिशनल तरीक़ार है उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे अल्टरनेटिव पेडागॉजीज़ हैं। तो उन पेडागॉजीज़ को जब हम अडॉप्ट करेंगे तो अंग्रेज़ी सिखाना और सीखना आसान हो जाती है। तो बेसिकली हमारी जो सारी कोशिश यही है कि सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स इन तरीक़ेकार को अडॉप्ट न करें, ये जो तरीक़ेकार हैं अल्टरनेटिव पेडागॉजीज़ हैं उनको ये बाहर लेकर जब अपनी फील्ड में जब ये आएंगे और इंग्लिश सिखाएंगे तो बहुत आसान तरीके से दूसरे जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उनको ये सिखाएं। असां वटि हिते प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जे तहत एजुकेशनल एक्सपो लॻल आहे। ही लिटरेचर ऐं लिंग्विस्टिक्स जे ॿारनि जो एक्सपो आहे। इन प्रोजेक्ट जो मतिलबु इहो हो त असीं जेको ट्रेडिशनल मुरवजाए तालीम हूंदो आहे उन खां हटी ॿारनि खे मुख़्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जे तहत अंग्रेज़ी ज़बान ऐं लिटरेचर पढ़ायूं ऐं जेको ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जा जेके मुख़्तलिफ़ तरीक़ा आहिनि उहे प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस करायूं। त तव्हां ॾिसंदा असां वटि तमामु मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा डाइवर्स प्रोजेक्ट्स आहिनि जंहिंमें कैंपस में क्लीनलीनेस ड्राइव खां वठी करे असां वटि साइबर बुलिंग खे कीअं अवॉइड कजे, टिकटॉक जा ॿारनि ते असरात, उन्हनि जी तालीम ऐं सिहत ते जेके शागिर्दनि खे ज़हनी मसइला थियनि था उन्हनि ते बि प्रोजेक्ट आहे असां वटि। तालीम खे वधीक इंक्लूसिव कीअं कजे उन ते प्रोजेक्ट आहे। त हीअ यकीनन सुपरविजन त मुंहिंजो रहियो, पर असांजे स्टूडेंट्स जी पंहिंजी ड्राइव, पंहिंजी मोटिवेशन उन तमामु अहम किरदार अदा कयो आहे। ही प्रोजेक्ट सभु रिसर्च बेस्ड आहिनि, मतिलबु ॿारनि पहिरीं वञी रिसर्च ऐं सर्वेस कया आहिनि, उन खां पोइ उन्हनि ही प्रोजेक्ट्स पेश कया आहिनि। The main topic that we suggested that it's very important to have arts into our education. Arts education is basically an instructional approach that mixes fundamental discipline with music, dance, theatre and visual arts is known as simply arts integration. Researchers have suggested that arts act as a stimulus, a refresher or simply we can say a facilitator to think and learn students widely and creatively. And many researchers have suggested different theories about arts, that arts help many students to learn multiple theories. And it's also like the disabled students who are blind, who are deaf, they can also learn through art. I am from Group Echo and we are doing this cleanliness drive project. The motive behind this project is basically to educate students about the importance of keeping our department clean. We believe that awareness is far more important than the implementation itself, because students are already educated about these things, that we are very ignorant towards keeping our department clean, and there are dustbins in the department, yet we still tend to throw garbage around the classroom. So by this awareness drive, we are basically creating posters and video content to educate students about the importance of keeping our department clean and to throw garbage in the dustbins. I am Aiman Mushtaq from BS3 English Literature and Language. My topic is global perspectives of ESL dynamics. So we have our main motive of this choosing this topic was to share our ideas and perspective of all around the world of the students, how they are perceiving English as a second language, what are the problems that they are facing in speaking English, and what are the implications that can be made to improve our English. And also we have also quoted some citations all around the world about English language. So the main topic which
our main topic is all about how English as a second language is ruling our 21st century, how it is helping, and how IT professionals, computer science professionals, and electronic media, computer, digital platforms are using English as their important language. ये जो हमारा एक्सपो हुआ है, ये हमें मैम साइमा जाफरी ने असाइन किया है। ये हमारा एक्सपो में मैम ने हमें पोस्टर बेस्ड लर्निंग का कहा था। तो हमने जो टॉपिक लिया था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ ईएलटी इन पाकिस्तान। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ ईएलटी इन पाकिस्तान का मेन मकसद ये है कि हम लोगों में ये अवेयरनेस बताएं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इन पाकिस्तान। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू के बाद। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश सिनेमा और उसके लिटरेरी थीम्स। इसमें हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि मूवीज़ कैसे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है कि वो इंग्लिश सीखें और उनका एक्सेंट जो है ना कैसे इम्प्रूव हो। तो बेसिकली जब हम चीज़ें देखते हैं बनिस्बत पढ़ने के, तो वो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देती हैं और उनसे हम ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो यही हमारा मोटिव है कि स्टूडेंट्स में ये रुझान लाए कि मूवीज़ से भी हम कुछ सीख सकते हैं, ना सिर्फ एंटरटेन के काम आती हैं। हमारा बेसिक टॉपिक है क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। तो उससे हिसाब से हमने ये लाइब्रेरी रखी है छोटी सी, और क्लासरूम बनाया है, चेयर्स बनाई हैं। तो हम ये उसके अलावा हमने क्लासरूम की टाइप्स बनाई हैं, जैसे कि ब्लेंडेड क्लासरूम है, मोंटेसरी क्लासरूम है, और ट्रेडिशनल हैं क्लासरूम, फ्लिप क्लासरूम है। तो हम मतलब डिसाइड कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि क्लासरूम डिसाइड कैसे करता है। हमें चाहिए कि हम अपने क्लासरूम्स में इन्वेस्ट करें, मोर मनी इन्वेस्ट करेंगे तो और स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो हमारी जो यूथ है या न्यू जनरेशन है वो उस तरह के पैदा होंगे। अगर हमारे क्लासरूम्स की क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस या नहीं होगा, या हमारे टीचर्स उस हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी यूथ जो न्यू नेशन है या जनरेशन है वो उस तरह से पैदा होगी।